یہ وہی چلنے والا تخت ہے جس کے بارے میں عوام نے افسانے بنا لیے ہیں؟ ہاں شیخ، یہ تخت ایک پرندہ ہے۔ تعجب ہے۔ تو پھر ابھی کیوں کر رکا ہوا ہے؟ اڑتا کیوں نہیں؟ دیکھ تو رہے ہو شیخ کہ اسے رسیوں سے باندھا ہوا ہے، اور ہاں، جب تک کوئی اس پر سوار نہیں ہوتا یہ نہیں اڑتا۔ مطلب جو بھی اس پر بیٹھے گا وہ اڑے گا؟ نہیں، جو بھی نہیں، وہ شخص جو مومن ہو اور اس کا سینہ انوار قدسیہ سے بھرا ہوا ہو اور اپنے دل کو شیطان کے ہاتھوں نہ بیچتا ہو، ایسا بندہ اس پر بیٹھے گا تو یہ اڑنے لگے گا۔ ایمان کو تولنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تم اپنا ایمان تولنا چاہتے ہو شیخ؟ نہیں، ہرگز 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 نہیں۔ خدایا، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، کوئی بھی بنی بشر سوائے نبیوں کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کا دل شیطان سے پاک ہے اور وسوسوں سے خالی ہے۔ خدایا ہمیں شیاطین کے ظاہر و باطن کے شر سے بچا لے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یا اللہ! کیا ہوا؟ خدا را میری مدد کیجئے، یہ جادو ہے، یہ معجزہ۔ مسلمانوں خدایا میری مدد کرو، توبہ کرتا ہوں، مسلمانوں مجھ پر رحم کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اہلا وسہلا شیخ۔ آلن، آپ کون؟ میں مختار ہوں جناب نجدد ابن عامر، مختار، لشکر مکہ کا سپہ سالار۔ میں نے سنا ہے کہ زبیر کے بیٹے کا تخت بھی تخت سلیمان نبی کی طرح اڑتا ہے۔ اس آستانے کے خادم نے اور ایک عجیب بات کہی۔ اس کا دعویٰ ہے کہ جو بھی اس تخت پر بیٹھے گا اس کا قلب شیطانی وسوسوں سے پاک ہوگا تو یہ اڑنے لگے گا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے کہ شیطان فی الحقیقت اس میں نفوذ نہ کرے، وہ ملکوت اعلیٰ کی طرف عروج پانے کا حق رکھتا ہے، اور تمام الہی نشانیاں اس جیسے بندے کے سامنے مطیع اور فرمانبردار ہو جاتی ہیں۔ وہ شخص زبیر کا بیٹا ہے؟ نہیں، ابن زبیر بھی میری اور آپ کی طرح ایک عام انسان ہے جسے خطائیں سرزد ہوتی ہیں۔ تو پھر اس تخت کا آخر کیا قصہ ہے؟ کیا عوام الناس نے اس کی تعریفیں شروع کر دی ہیں؟ ہاں، میں نے بھی چند لمحوں پہلے اس تخت کے معجزات میں سے ایک معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ اس تخت کے بارے میں نگران ہو گئے۔ شیخ صاحب، وہ شخص جو ایک بے جان چیز کے آگے لاچار اور مجبور ہو جائے اور اس کا قلب شیطانی وسوسوں سے بھرا ہوا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی دیانتداری کا دعویٰ کرے اور حکم چلائے اور اپنے آپ کو برحق کہلوائے اور دوسروں کو باطل قرار دے؟ مقصد کیا ہے تمہارا؟ رہنے دو شیخ،
اب ہم اصل موضوع پر آ جائیں. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یزیدیوں کے خلاف اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیں؟ بہت خوب. بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا کسی مال کے لالچ میں پڑھتے ہیں؟ آل امیہ سے لڑنا خوارج کی شرعی ذمہ داری تھی اور رہے گی. خدا نے چاہا تو آل امیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. خدا نے چاہا اور آل امیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہم نے. اس کے بعد کیا شیخ؟ آل زبیر سے متحد رہو گے یا انہیں خدا سے لڑنے والا قرار دے کر کفر کا فتویٰ لگا دو گے؟ ہم وعدہ نہیں کرتے کہ ہمیشہ ہمیشہ زبیریوں سے اتحاد رکھیں گے. صرف جب تک زبیریوں نے قرآنی احکامات کے مطابق عمل کیا ہماری گردن حاضر ہے. اور جس جگہ یہ لوگ قرآن کے حکم سے منہ پھیریں گے خوارج کی تلوار ان کے خلاف ہے. اب رہیں یا چلے جائیں؟ کیا تم آل زبیر کے چمچے ہو جو ان کے دوام اور بقا کے لیے اتنی بحث کر رہے ہو؟ تم نے تو آل امیہ کے شر کو دفع کرنے کے لیے آل زبیر کے شر کو سہارا بنایا ہے. خوارج بھی آل زبیر کی طرح ہیں. یہ لوگ جیسے بھی آ رہے ہیں آنے دو اور ان اہل شر کی تلواروں سے یزیدیوں کے شر کو ختم کر دو. کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ ہم کیا کریں؟ چلے جائیں یا رک جائیں؟ کیا یہ منظور ہے کہ ایک ہی حکمرانی کے تحت چلو گے اور اپنے ارادوں سے جنگی معاملات میں دخل نہیں دو گے؟ یہ تو ہر جنگ کے اہم ترین واجبات میں سے ہے. جب تک ایک حکم کے تحت نہ چلا جائے فتح و ظفر میسر نہیں ہو سکتی. بہت خوب. اب سے تم لوگ لشکر مکہ کے فوجی ہو اور دوسرے فوجیوں کی طرح جنگی غنیمت اور مواجب سے استفادہ کر سکو گے. جيش الله حافظ بيت الله 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 جيش الله حافظ بيت الله. درود درود ہو بندگان خدا پر، سیف اللہ اور ید اللہ پر. کیا آپ اپنی غیرت مند اور جانثار فوج کا استقبال نہیں کریں گے جناب علی؟ خدا قبول کرے شیخ، خدا مدد کرے. جزاکم اللہ. یہ اتحاد بھی خانہ کعبہ کی برکتوں میں سے ایک ہے. کعبہ بھائی چارگی، برابری اور محبت کا گھر ہے. کعبہ دلوں کا قبلہ ہے. کعبہ حجابوں کو چیر دیتا ہے اور تمام دینی اور فرقہ وارانہ فسادات کو مصالحت میں بدل دیتا ہے. اس گھر میں نہ رنگ کا فرق ہے اور نہ قومیت کی کوئی فضیلت ہے اور نہ ملکیت اور اقتدار کی. اس گھر میں سب اللہ تعالی کو لبیک کہتے ہیں. انشاءاللہ خدا ہماری نصرت فرمائے تاکہ ہم خانہ کعبہ کے دشمنوں کو مار بھگائیں. سارے معاملات حسب توقع ہیں نا شیخ؟ آپ خود دیکھیے، جناب خلیفہ کے قول کے مطابق خانہ کعبہ قدرت بڑھانے والا ہے. خدا کی مدد سے کوہ ابو قبیس کو قبرستان بنا دیں گے یزیدیوں کا. آج رات تشریف لائیے اور اپنی رکاب کے فوجیوں کو ایک نظر دیکھ لیجئے.
जरूर आऊंगा ताकि आप लोगों की जिम्मेदारियों के हवाले से कुछ गुफ्तगू करें। खुदा सलामत रखे शेख। हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। फी अमान अल्लाह। खुदा आप लोगों को अजर दे। फी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज शेख। जयशुल्लाह 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 जयशुल्लाह। मुझे यकीन नहीं आता कि ये गिरोह वही खुश्क दिमाग वाले मुतासम और खुराफा परस्त हैवानात हैं कि जो एक मन शहद के साथ भी निगले नहीं जा सकते। तुमने आखिर उनके साथ ऐसा क्या कर दिया जो पटरी पर आ गए और इंसान बन गए? कुछ खास नहीं किया, थोड़ा सा तहजीब नफ्स, तज़किया रूह और तलवारों के आदाब के बारे में गुफ्तगू की है। इसके बावजूद मुझे अब भी यही गुमान है कि इस गिरोह का ये चक्कर मसलहत से भरपूर है। जरा सी गफलत करेंगे तो हमारा नुकसान कर देंगे। काश ऐसा कोई चारा कार होता कि उनके किए हुए को इन्हीं के पैरों में डाल सकते। डर है हमारे लश्कर को नुकसान न पहुंचा दे। फिलहाल इस गिरोह की तलवार और इनके सीनों में उमवियों के खिलाफ जो कीना है, हमें उसकी जरूरत है। नजरों में खार और गले में हड्डी लेकर फिरने वाले ये लोग जिन्होंने मेरे मौला के सर पर ज़र्ब लगाया, खुदा की कसम अगर मजबूरी न होती तो इन्हें अपनी सफ में खड़ा न होने देता। बहरहाल आप फिक्र मत कीजिए, ऐसी तदबीरें की गई हैं कि अगर ये लोग हाथ पांव फैलाना चाहें तो इनके हाथ पांव काट देंगे। जुबैर के फितनागर बैद शिकन और सरगश बेटो, मैं हुसैन हूं, नुमैर का बेटा। मैं मैदान में इसलिए उतरा हूं ताकि तुम्हारे फरेब में आने वालों के साथ इत्माम हुज्जत करूं। हिजाज के लोगों, जुबैर के डरपोक और बुज़दिल बेटों ने अपने बाप की इज्जत और आबरू को अपना खिलौना बना लिया है। इनका बाप एक सहाबी की बार था और रसूल खुदा के साथ था। उसकी तलवार ने दीन खुदा के दुश्मनों की गर्दनें उड़ाई है। उसके बेटों का क्या हिस्सा है? इन्होंने सिवाय शरारत, फितनागरी और दगाबाजी के और क्या किया है? अगर रसूल खुदा से निस्बत रखना खिलाफत का हकदार बना सकता है तो फिर अली के बेटे सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं। ऐ आले जुबैर के बहकाए हुए मक्खियों, मैं तुम्हें थोड़ी सी मोहलत देता हूं कि तुम अब भी समझ जाओ। एक मौका देता हूं, तौबा कर लो और तलवारें नीचे कर लो और शेर से पंजा आजमाई मत करो और अपनी प्यारी जानों को मुट्ठी भर कुदरत के प्यासों पर फिदा मत करो। मैं इजाज के नादिम होने वालों को अमान देता हूं, मगर जुबैर के बेटे को हरगिज नहीं। इन लोगों का खून बहाना वाजिब है और मैं इनका सर अपने साथ शाम ले जाने आया हूं। अब तुम लोग खुद ही समझो।
یہ گستاخ کب تک زبان چلانا اور زبیر کے بیٹوں کی تحقیر کرنا چاہتا ہے؟ مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان میں جا کر اس بن باپ کے بیٹے کا منہ توڑ کر رکھ دوں. نہیں مصعب، نہیں. تم لشکر کے محسرہ کے علمدار ہو. جاؤ جاؤ اور دھیان رکھو کہ دشمن تمہاری فوج تک نہ پہنچ سکے. جسارت ہے بھائی جان. ابن نمیر نے زبیر کے بیٹوں میں سے ایک کو میدان میں بلایا ہے. شرمناک ہے کہ ہم اس کا جواب نہ دیں. اگر ہم میں سے کوئی ایک میدان میں نہ جائے تو ہمارے لشکر والے اس بد نسل کی باتوں پر یقین کر لیں گے اور سست ہو جائیں گے. مصعب، جذباتی مت بنو، اپنے غصے کو لگام دو. تمہیں علمداری کرنی چاہیے، رجس خانی نہیں. اے اجاز کے لوگوں، آپ لوگوں نے اب تک جو کچھ سنا وہ زبیر کی خوبیاں ہی تھی جن کو سن کر آپ بہکاوے میں آ گئے. اب چند جملے اس جلیل القدر صحابی کی برائیوں میں سے سنیے جس نے اپنے تمام تر مجاہدات کا اجر و ثواب حب دنیا کے لیے بیچ دیا اور اپنے خلیفہ کے خلاف میدان میں اتر آیا اور سب کو یہ دکھا دیا کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے اس طرح لڑ سکتا ہے اور اسے قتل بھی کر سکتا ہے. بھائی بھائی کا قتل کرنا ایک ایسی بدعت تھی جس کی بنیاد اصحاب جمل کے ہاتھوں رکھی گئی. یہ آپ کا حجازی اور زبیری خلیفہ اس جنگ کا شعلہ بھڑکانے والوں میں سے ایک تھا اور حضرت علی سے لڑا. اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ علی کے بیٹے کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ اس سے بڑھ کر جھوٹ اور کیا ہوگا؟ اے پسران زبیر، تم لوگ تو فتنہ گری میں سب سے آگے ہو اور فتنے کو دفع کرنے میں سب سے پیچھے. تم لوگ جو دعویٰ کرتے ہو کہ دین کا دھن رکھتے ہو تو پھر میدان میں کیوں نہیں آتے کہ اپنے خون کو دین پر قربان کر دو اور زبیر کی تلوار کی آبرو کو خرید لو. ابو اسحاق، اس سے زیادہ خاموشی ٹھیک نہیں. زبیر کے بیٹوں میں سے ایک کو اس کا جواب دینا ہوگا. منظر، جی بھائی جان. اس ملوم کو جواب دو. بسد شوق. منزل، شیلو، جاؤ اور بابا کی تلوار سے لڑو. کیا ہوا بانو جان؟ دل گھبرا رہا ہے زبیدہ. ڈر ہے کہ منظر کوئی غلطی نہ کر جائے. مت ڈریے میری بانو، لشکر مکہ میں بہادروں کی کمی نہیں ہے. مختار اور مصعب خود ایک لشکر ہیں. منظر نوجوان اور مغرور ہے، اسے جوش دلایا گیا تو میدان میں چلا جائے گا. بعید ہے کہ حضرت خلیفہ اپنے چھوٹے بھائی کو میدان میں جانے دیں. آؤ. کہاں میری بانو؟ مجھے منظر کو ایک پیغام بھجوانا ہوگا. آرام سے خاشا،
कजावे पर बैठो। कजावा मेरा ताबूत बन जाए। आओ। ए नुमैर के बेटे, तुमने जुबैर के बेटों को डरपोक और फरार करने वाला कहा। आंखें खोलो और देखो, कान खोल कर सुन लो। अगर पिसरान जुबैर डरपोक होते तो तुम लोगों के जुए बाज, कुत्ते बाज और बंदरबाज खलीफा का इतनी सारी फौज किराए पर खरीद कर इस सरजमीन हिजाज की तरफ भेजने की जरूरत न पड़ती। मरहबा मुंजर, तूने माँ का दूध हलाल कर दिया। इस 2 बालिश के बच्चे की कैसी काटने वाली जुबान है। बदनसीब एक मैदान में पलने वाले बूढ़े की तरह रजस पड़ रहा है। ये मक्का है, सरजमीन नजूल वही। खुदा ने इस खाक में इंसान से बात की है। खुदा ने इस खाक में अपना घर बनाया है। इस मुकद्दस मट्टी को अपने खून से नजिस मत करो। इस बार यजीद शाह ने तुम लोगों को खुदा से लड़ने के लिए भेजा है। एक ख्वाब दिखाकर खरीदे गए लोगों, होशियार, देखो और पहचानो कि मैं हूं मुंजर, पिसरे जुबैर इब्ने अवाम। और ये तलवार मेरे दादा की तलवार है कि फरमाने रसूल खुदा के मुताबिक जो शख्स इस तलवार से मारा जाए वो दोज़खी है। अब अगर तुम लोगों के दरमियान कोई दोज़ख में जाने के लिए बेकरार और बेताब है तो बिस्मिल्लाह। बिल्ली के बच्चे को भेजा गया है ताकि शेर की आवाज निकालो। जाओ बच्चे जाओ, तुम अभी बहुत छोटे हो। वो जो तुम्हारे हाथ में है तलवार है, कोई मशक करने का आला नहीं है। जाओ और बोलो कि तुमसे बड़े को मैदान में भेजें, हम खेलने नहीं आए। ए नुमैर के बेटे, तुमने जो इतनी बकवास की वो काफी नहीं थी। क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया कि तुम अपने आप को मर्दे मैदान साबित कर सको? अलोची, जाओ इसकी बदबूदार जुबान काट दो। इसकी माँ को उसके गम में रुला दो।
तुम्हारी है? मुंजर की मुजाहिदात का अजर ज़ाय मत करो। मुंजल इस मैदान का हरीफ नहीं था। मुझे इस मैदान में जाना चाहिए था, मुंजल को नहीं। मुझे अफसोस है जनाब खलीफा, मुंजर ने जवां मर्दी के साथ जंग लड़ी। खुदा उसे गरी की रहमत करे। मुझे रुखसत दीजिए ताकि मैदान में जाऊं इंतकाम के लिए। नहीं बिन मोती, कोई बहादुर जो मुझसे लड़े। कौन हो तुम? मुंह क्यों छुपाया हुआ है? नुमैर के बच्चे, भेज अगर कोई मर्द है तेरे पास। मैंने पूछा कौन हो? जंग के मैदान में तलवार की ताकत बंदे की पहचान होती है। लश्कर के सबसे खतरनाक आदमी को सामने भेज, फिर तुझे बताता हूं कि मैं कौन हूं। इसका जवाब दो। तब हूं, मुझे यही अल शाम का कातिल कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे क्यों जहमत दी दे? बोल कैसे मारूं तुझे? तुझे तो मैं एक मुट्ठी में ही मसल दूंगा। एक अजूबा है। नुमैर के बच्चे, मैंने मजाक नहीं किया था। मैंने ये चाहा था कि तुम किसी मर्द को मेरे सामने भेजो। क्या तेरे लश्कर के सारे पहलवान इसी तरह के हैं? मुख्तार, ये तुम हो? अपने वकार का सौदा कितने में किया? हुकूमत इराक के बदले? आले जुबैर धोखेबाज हैं, वादा पूरा नहीं करेंगे। हमारी तरफ आ जाओ। मैं वादा करता हूं कि अमीरुल मोमिनीन यजीद के हुजूर सिफारिश करके तुम्हें इराक की अमारत दिलवा दूंगा। आज के लिए इतनी जंग काफी है। जंगबंदी का सूर फूंका जाए और जनाजों को मैदान से उठा लिया जाए।
मरहबा मुंजार, तुम्हारे हाथों को चूम लूं मैं। जाफर, मुंजर के जनाजे को जमीन से उठा लो। मसअब, दुश्मन की जानिब से गाफिल मत होना। इस जंग बंदी के धोखे में मत आना तुम लोग। जंग अब शुरू हुई है। इब्न नुमैर पीछे हटने के लिए मक्का तक नहीं आया है। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. क्यों चले गए मुंजर? क्यों चले गए मुंजर? मुंजर मेरी जान, हमारा सलाम रसूलुल्लाह को और हमारे बाबा जुबैर और खाला आयशा को पहुंचा देना। लाश को औरतों के दरमियान ले जाओ ताकि मर्दों में ना जाए और वो लोग सुकून से रो सके। और ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। लाश को ज्यादा देर रखना मकरूह है। मुझे अपने गम में शरीक जानिए। मुंजर ने गैरतमंदाना जंग लड़ी, जवां मर्दी का मुजाहरा किया। खुदा उसे गरीक रहमत करे। खुदावंद आपके मुर्दगान की भी बख्शिश फरमाए इंशाअल्लाह। तुम्हारी जांबाजी ने हमें तसल्ली खातिर बख्शी है। जो कुछ मैंने तुम्हारी दिलेरी और तलवार की गरज के बारे में सुना था, बेशक वो अफसाना नहीं था। मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि मुख्तार बवक्त पेकार एक मोजज़ागर है जो है कहार। बेशक
यदुल्लाही का लक़ब तुम्हारी शाया निशान है। शुक्रिया। तुम्हारे बिजली कैसे हमलों की वजह से चंद दिनों तक शामियों को खौफ और राज घेरे रहेगी। तुम्हारे ख्याल से ये लोग कब तक जंगबंदी को जारी रखेंगे? मुझे लगता है कि ये जंगबंदी सिर्फ और सिर्फ एक फरेब हो। जो बात हतमी है वो ये है कि इब्न नुमैर एक पर एक की जंग हरगिज नहीं लड़ेगा। मुमकिन है कि वो आपको गाफिल करने वाला और भरपूर हमला करने की सोच में हो। हमें बहुत मोहतात रहना होगा। अब कैसी तैयारियों के साथ शामियों से लड़ने जाएं? हम अपने फौजियों की इस कदील सी तादाद के साथ खतरनाक मैदान में शामियों पर फतह नहीं पा सकते। जंग का तवील होना हर लिहाज से हमारे हक में फायदेमंद है और शामियों के लिए नुकसानदेह है। शाम से दूरी, खाने पीने के वसाइल की महदूदियत, हिजाज के सहरा की तपती हुई गर्मी, ये सब वो रुकावटें हैं जो इब्न नुमैर के कदम उखाड़ देंगी और मजबूरन से जंग खत्म करनी पड़ जाएगी। तो फिर हमें चंद मैदानों में बैक वक्त उन्हें तरह तरह की अजियतें और तकलीफें देनी होंगी ताकि ये लोग खूब थक जाएं और मान पड़ जाएं। मैं समझ गया। यानी जंग और जंग बंदी बैक वक्त और वो भी हर जानिब से। जी हाँ, मगर हमारी जंग लड़ने की कैफियत और मिकदार भी आम है। हमारी जंग और जंग बंदी परेशान कुन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जहां दुश्मन हमसे हमले की तवक्को रखता है वहां हम जंग बंदी कर लें, और जहां हमारे फरार की तवक्को रखता है वहां हम हमला कर दें, बशर्ते कि हमारे तमाम तर अलमदार अपने अपने वज़ाइफ को लफ्ज पर लफ्ज और बर वक्त पूरा कर लें। आज की जंग ने यह दिखा दिया कि दुश्मन हमारे नामवर सिपाहियों और अलमदारों को जोश दिलाना चाहता है। मुझे यकीन है कि मरहूम मुंजर इसी धोखे की एक कुर्बानी हो गए। मुसब बहुत जल्दी जोश में आ गए और मुंजर को भी जोश दिला दिया। मैंने सुना है मुख्तार एक मुक्के सरतरा के सांड को ढेर कर देता है। तो भाई यकीन कर लो, क्या देखा नहीं तुमने कि शामी दिया को कैसे ही एक इज्जत में सुला दिया उसने। मुख्तार के मौला हैदर कर्रात के जैसे हैं, जिसने एक ही झटके में दर खैबर को उखाड़ दिया। सो मुख्तार ने भी एक ही ज़र्ब में फारिक याहिया शाम को ढेर कर दिया। जाहिर सी बात है कि अली का मुरीद मुख्तार जैसा ही बन सकता है। मेरा दिल मुंजिल के लिए जल रहा है। किसे मालूम था कि मक्के के पहले दिन की जंग का लुकमा जुबैर का सबसे जवान बेटा हो जाएगा। उसके भाई मुसब का कसूर है। अगर वो खामखा दखल ना देता तो मुंजर भी जिंदा रह जाता। अभी तुमने देखा ही क्या है? मुख्तार ने तो अब तक कोई जंग ही नहीं की। देखने का मंजर तो उस दिन है कि मुख्तार शामियों की पूरी फौज को मैदान में बुला ले। मुख्तार की अली से मोहब्बत एक अजीब दास्तान है। आज भी उसने हुसैन के इंतकाम के इश्क में तलवार चलाई। जब तक हमारे पास मुख्तार है हमें कोई गम नहीं है। मैं तो उसका मुरीद बन गया हूँ। अगर वो मरने का हुक्म दे दे तो वाय है मुझ पर कि उसकी बात ना माने।
शाह के बाद उबैदुल्ला सबसे बड़ा मुजरिम है। इब्ने ज़ियाद जो मशहूर है बनाम इब्ने मरजाना, अशकिया में शकी तरीन शख्स, औलिया और औसिया और 72 शुहदाए करबला का खूनी दुश्मन और कातिल, जो झूठ और रियाकारी का, खुदा की नाफरमानी और हराम कारियों का अहल है, उसका और उसके साथियों का नजिस वजूद तार पे लटकाया जाएगा। अल्लाह तू ही बचा ले, तू ही हमें बचा ले अल्लाह। क्या कर रहे हो शेख? वो सब तो अपने भाई का बहाना था। तुम्हें क्या हुआ? मैदान छोड़कर क्यों भागा? इस लश्कर के सिपा सालार तुम हो मुख्तार, और मुझसे पूछते हो? तुम्हें इन हरामियों के शब खून का ध्यान रखना चाहिए था, हमें नहीं। अगर बहादुर होना लश्कर की सिपा सालारी की शर्त होता तो किसी सांड को सिपा सालार कर देते। तुम्हें सिर्फ अपने लिए अलकाब जमा करने आते हैं। यदुल्ला, यदुल्ला, कहाँ है यदुल्ला? बकवास बंद करो जाहिल की औलाद। हटना ही था तो मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, मैं एक बेवकूफ और जाहिल से पैसादार था जो तुम लोगों की तारीखी खयानतों को नजरअंदाज कर दिया और कबूल कर लिया कि ख्वारिज के साथ मिलकर एक महाज पर लड़ूं। जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। Oh!
ही कयामत है। खुदा ने हमसे नाराजगी इख्तियार कर चिल्लाओ मत खाशिया, घबराओ मत। इन काफिरों ने मंजनीकों से खाने काबा पर हमला किया है। खुदा बेकार क्यों बैठा हुआ है और अपने घर के जलने का तमाशा देख रहा है? जमीन क्यों नहीं फट जाती? आसमान क्यों नहीं फट जाता? भैया उठो, हमें खाने काबा को बुझाना होगा। उठो। या तो यजीद अब्रहा नहीं है, या शामी असाब फील नहीं है। हमें खाने काबा की मौजज़ा न दिखाने की कोई हिकमत ढूंढनी होगी, वरना हम बुरी तरह गुमराह हो जाएंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं मूसा? ज़ाहिर तो ये लगता है कि खाना काबा की आग बुझाना चाहते हैं। अजीब अहमद लोग हैं। खाना काबा को जलना चाहिए। यजीद के कुफ्र की सबसे वाज़ेह दलील। खुदा की कसम, अगर ये आग खुद बहुत खाना काबा पर गिरती तब भी मैं इसका इल्जाम उस्मान के कुर्ते की तरह यजीद पर डाल देगा। मुख्तार! मुख्तार! इधर आओ। क्या कर रहे हो? क्या देख नहीं रहे कि खाना काबा आग में जल रहा है? हमें आग बुझानी होगी। नहीं मुख्तार, अगर मसलहत होती तो खुदा आग को बुझाने पर कादिर है। खाने काबा को जलना चाहिए ताकि साहब सब जान लें कि यजीद खुल्लम खुल्ला काफिर है और उसको रत्ती बराबर भी खुदा और उसके घर पर ईमान नहीं। ये कैसी मसलहत है? फिर आप लोग मुसलमान हैं? भाइयों, जिसका भी खुदा और उसके घर पर ईमान है वो इस आग को बुझाएगा।